So this course is the fishing craft technology, as we know, and today we will study about the classification of fishing craft. That means the fishing craft we are having a several classification based on their operation, based on their construction of materials, based on their this duration of voyage, how many days we are going to the seas. But before that, we must have to know about the fishing craft or fishing vessel. How we can define fishing vessel? What is fishing vessel? Fishing vessel. Fishing vessel. It It is is a, yeah. device which is used for fishing activities No issue, like because transportation. fishing is there, so definitely this craft will be used for fishing activity. But how you can define this? That is the function. But I am asking the definition. So basically, the fishing vessel say mobile floating objects. That means any object which floats into the water. Okay, so mobile floating objects, and that have of any kind or size, which is operated in fresh water, brackish water, and marine water. And basically, this craft used for catching, transporting, landing, preserving, or processing. What we are doing? This craft, fishing craft, we are using for the purpose of catching. That means we are catching the fish. That means then next transporting. That means after catching, we have to transport to the landing center. So that's why transporting, landing. From the craft, we have to land the fish on the landing center. So we are going to the sea, then catching the fish, bringing the fish to the shore, that is transporting, and then landing over the landing center. And this vessels is also used for preserving. Say for example, we are having a fish carrier, sorry, fish hold is there. So in that fish hold, whatever catch is coming, we have to store. Or freezer is there, so we can use freezer for preserving. Then processing, if bigger ship is there, bigger vessel is there, so processing of fish, shellfish, and other aquatic animals, excluding whales. Why? Whale is a fish or what? Sir, mammal. Mammals. So this is the definition. Basically, fishing craft or fishing vessel, it is a full floating object, mobile floating object of any kind and size, which is operated in freshwater, brackish water, as well as marine water. And this craft basically used for catching of fish, transporting of fish, landing of fish to the landing center, as well as for preserving of fish, as well as shellfish and other aquatic animals, excluding whales. So this is the definition. Now we are having a classification. So this classification of fishing craft, basically we are classifying based on different criteria. So that first criteria is this depth of operation, then duration of voyage, size of vessel, material used in the construction, then type of propelling system, and in accordance with the actual operation. So these are the criteria. Based on that, we are classifying fishing craft. We will go one by one. So first is the depth of operation. If we are going to the sea, so basically in the sea water, we are measuring the depth in terms of fathom. In terms of fathom, 1 fathom is equal to 6 feet, or in terms of meter, it will be 1.8 meter. याद रहेंगे? 1 fathom is equal to 6 feet, or 1 fathom
is equal to 1.8 meter. This is most important and most commonly come in your competitive exam. So if we are going to the sea or water, we are measuring the depth of water in terms of fathom. So based on the depth of operation, we are having an inshore vessel. Inshore vessel means vessel which operate up to 10 fathoms depth. 10 fathoms depth कितना हो गया? 10 fathom depths in terms of feet. You multiply 10 into 6, that is 60 feet. 60, sir. 60 feet. 60, don't tell 60. You have to express in terms of measuring unit. So inshore vessel basically operated up to 10 fathoms depth. Okay, that means near to shore. Offshore vessel that operates depth range in 10 to 40 fathoms. 10 और 40 fathom के बीच में जो vessel operate होगा, that vessel is called as offshore vessel. And the deep sea vessels, the vessel which operate beyond 40 fathoms. So you have to remember 10 fathoms inshore vessel, 10 to 40 fathoms offshore vessel, and beyond 40 fathoms, that is the deep sea vessel. That means vessel which operated into the deep sea area, having a depth of more than 40 fathoms. क्योंकि बड़ा vessel है तो इसको depth ज्यादा चाहिए. So that's why this is the based on the depth of operation, this vessel fishing vessel has been classified into 3 categories: inshore vessel, offshore vessel, deep sea vessel. ठीक है? Now next is the size of vessel and duration of voyage. Size of vessel and duration of voyage. Duration of voyage means कितने दिनों तक के लिए हम फिशिंग के लिए जा रहे हैं समुद्र में. So that is the duration. And the size of the vessel generally we are expressing in terms of meter. So we are having a near water, middle water, distant water. Near water, that means vessel of length, that means size जो होगा उसका 12 मीटर होगा. ये 12 मीटर का जो बोट है वो डेली क्या करता है? ट्रिप्स लेता है समुद्र में, आएगा जाएगा आएगा जाएगा आएगा जाएगा. शॉर्ट ड्यूरेशन के लिए जाएगा, दिन में हो सकता है 2 बार भी जाए, 4 बार भी जाए. छोटा बोट है तो इट विल गो एंड कम, इट विल गो एंड कम फॉर फिशिंग. So that is the near water. That means the vessel which is operated near the shore area. ठीक है? Then middle water है, उसका जो vessel का जो size है that is 12 to 30 meter. 12 to 30 meter. And here we are going for fishing 7 days or more. 7 days से 25 दिन, 7 से 25 दिन, 25 दिन से ज्यादा नहीं. 1 हफ्ता से हम बोल सकते हैं मीन्स 3 हफ्ता 3.5 हफ्ता. मतलब हम एक बार गए तो 3 हफ्ता तक हमको भाई समुद्र में ही रहना है. 3 हफ्ता के बाद हम आएंगे वापस. तो मिडिल वाटर. डिस्टेंट वाटर का जो वेसल जो हम ऑपरेट करते हैं, दैट वेसल हैविंग ए साइज ओवर 30 मीटर लेंथ. दैट मीन्स मोर देन 30 मीटर साइज लेंथ. और यहाँ पे हम मोर देन 25 डेज के लिए, 1 महीना, 2 महीना, 3 महीना तक के लिए ट्रिप पे जाएंगे समुद्र में और वापिस आएंगे 3 महीना बाद, 4 महीना बाद. ठीक है? सो दिस द 3 क्लासिफिकेशन. देन another classification is the construction of hull. Hull basically we are having a side. हमारे पास बोट है, ठीक है? बोट का जो साइड वाला पोर्शन है, that side portion is called as hull. H-U-L-L, hull. Side portion of the vessel, side portion of the ship, side portion of the boat is called as hull. तो इसमें क्या है? जो हल है, बोट्स जो है डेकेड बोट होता है. डेकेड बोट दैट मीन्स जो हल है वो हल के ऊपर में जो है डेक बना रहेगा. दैट मीन्स पूरा कंप्लीटली फिल्ड रहेगा विथ ए प्लैंक. दैट इज कॉल्ड एज डेकेड बोट.
हाफ डेकेड बोट में क्या होता है, आधा पोर्शन जो है उसका, आधा पोर्शन जो है प्लैंक से कवर रहेगा, आधा पोर्शन ऐसे ही वैकेंट रहेगा, दैट्स व्हाई इट इज कॉल्ड एज हाफ डेकेड बोट. ओपन बोट्स में होगा देयर विल बी नो डेक, इट विल बी ओपन जस्ट लाइक आवर डिंगी. डिंगी का जो होता है ओपन रहता है. स्मॉल बोट हम लोग जो रिवर में अभी ये हम लोग जाते हैं तो उसमें भी देखते होंगे बहुत सारा आदमी उस पे लोड होके जाता है, तो मोस्टली दे आर यूजिंग ओपन बोट, दे आर नॉट यूजिंग द डेक. ठीक है, सो दे this classification is based on the construction of hull. Then for construction of boat we require different materials for manufacturing or construction of boat. So we are having a materials which we are using for preparation or making a boat. We are using wood. अगर wood का होगा तो wooden boat, steel का है तो steel boat, फाइबर ग्लास रेनफोर्स प्लास्टिक का है तो एफआरपी बोट, फेरो सीमेंट से बना है तो फेरो सीमेंट बोट, एल्युमिनियम से बना है तो एल्युमिनियम बोट, कंपोजिट है दैट मींस ए मिक्सचर ऑफ 2 to 3 मटेरियल्स, तो दैट मींस इट इज ए कंपोजिट बोट. कोई ज्यादा टेक्नोलॉजी नहीं है, जस्ट याद रखना है. Then another classification of fishing vessel is the based on the gross register tonnage. That means वेसल का जो कैपेसिटी है वो कितने वेट को वो खींच सकता है पानी में जब जाएगा तो. सो उसके लिए हम जीआरटी पे क्लासिफिकेशन करते हैं. कोई वेसल अगर 1 to 25 जीआरटी के है तो उसके रेंज में वो आएगा, 26 से 50 के रेंज में है तो वो उसके अंदर में आएगा 26 to 50 जीआरटी, देन 51 to 100 जीआरटी, 100 to 101 to 250 GRT, 251 to 500 GRT and 501 to 1000 GRT. तो ये वेसल की कैपेसिटी को बताता है, ये कितना वॉल्यूम और कितना टन्स मतलब खींच सकता है पानी में. तो दैट इज द पावर ऑफ द वेसल. देन एरिया ऑफ ऑपरेशन ऑफ द वेसल. एरिया मतलब हम जो वेसल को जिस एरिया में हम ऑपरेट करेंगे फिशिंग के लिए, तो पहला है लार्ज वेसल ऑपरेटिंग प्रिंसिपल इन ओपन सी. ओपन सी मींस ओपन सी में जाके ऑपरेट करेंगे. मीडियम वेसल है तो जनरली इट ऑपरेट्स इनटू द EEZ मरीन एरिया. व्हाट इज EEZ? Exclusive economic zone. Exclusive economic zone. How much? कितना एरिया कवर करता है EEZ? 12 nautical miles. 12 nautical miles. 12 nautical miles. 12 nautical miles. बताओ बताओ. How much? EEZ तो बता दिया, exclusive economic zone. But how much area from the shore? It is a 200 nautical miles. 200 nautical miles. ठीक है. फर्स्ट जो है टेरिटोरियल वाटर दैट इज 12 nautical miles. Then another we are having a 24 nautical miles, that is a contagious zone. So from this territorial water to that EEZ, that means 200 nautical miles. तो समुद्र का जो एरिया है 200 nautical miles, तो जनरली ईस्ट कोस्ट, वेस्ट कोस्ट, साउदर्न कोस्ट जो है, साउदर्न कोस्ट में हमारा श्रीलंका बहुत नजदीक आ जाता है. तो एक्सेप्ट श्रीलंका we are not having this 200 nautical miles, but from the both side, east coast side as well as the west coast side of India, we are covering 200 nautical miles of EEZ. So that vessel operate in that water, 200 nautical miles water, EEZ area. Then a small vessel basically used in coastal and sheltered marine and brackish water. So basically small vessel, छोटा vessel होता है, coastal area में operate होता है, मरीन वाटर एज वेल एज ब्रैकिश वाटर. देन ये तो हमारा जितना था, ये हमारा क्लासिफिकेशन था बेस्ड ऑन दैट डिफरेंट क्राइटेरिया वी आर क्लासिफाइंग द फिशिंग वेसल. नाउ
फिशिंग वेसल बेस्ड ऑन देयर फंक्शन, जो वेसल का एक्चुअली फंक्शन क्या है, based on that we are classifying different vessel. So first is the trawler. Trawler हम लोग पढ़े होंगे, ट्रॉल नेट, ग्राफ गियर टेक्नोलॉजी में ट्रॉल नेट. सो ट्रॉल नेट को खींचने के लिए जो भी हम क्राफ्ट, जो भी वेसल हम यूज करेंगे, दैट ट्रॉलर इज नोन एज ट्रॉलर, दैट वेसल इज नोन एज ट्रॉलर. ठीक है, दैट मीन्स दिस वेसल बेसिकली यूज ट्रॉल फिशिंग गियर. दैट्स व्हाई the name itself is trawler. ठीक है. Now we are having a different categories. Side trawler में क्या होता है, जो side trawler craft होगा या vessel होगा, we are operating the trawl fishing gear from the side. Like that stern trawler is there. So in case of stern trawler, we are operating the trawl net over the stern. स्टर्न मतलब एफ्ट पोर्शन ऑफ द शिप, एफ्ट सोर्पन मतलब बैक पोर्शन ऑफ द शिप. साइड ट्रोलर में क्या है, दोनों साइड से हम ऑपरेट कर सकते हैं, पोर्ट साइड से भी और स्टार बोर्ड से भी. वो क्लासिफिकेशन आएगा अभी स्टार बोर्ड, देन यू विल नो द नोमेनक्लेचर ऑफ दिस डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द बोट. देन वी आर हैविंग ए वेट फिश ट्रॉलर. वेट फिश ट्रॉलर में क्या होता है, वी आर हैविंग ए फिश होल्ड. अगर हम समुद्र में जा रहे हैं तो जो हमारा बोट है, बोट के डेक के अंदर में ही एक रूम होता है, उस रूम को बोलते हैं हम लोग फिश होल्ड. उसमें हमारा आइदर वी आर हैविंग ए रेफ्रिजरेटेड सी वाटर, सो वी कैन कीप द फिश entirely into the wet condition. So wet fish trawler is there. Freezer trawler बहुत बड़ा होता है, यहाँ पे हमारा फ्रीजर लगा रहता है. फ्रीजर लगा होता है, दैट मीन्स जो भी कैच आएगा, कैच होने के बाद में हम उसको वॉश करेंगे, सेग्रीगेट करेंगे, एंड देन वी विल कीप इनटू द फ्रीजर टू फ्रीज द फिश. सो दैट्स व्हाई इट इज कॉल्ड एज फ्रीजर ट्रॉलर. दैट मीन्स दिस vessel is used trawl fishing gear, as well as they are also having a freezer to freeze the fish, to preserve the fish. Then we are having a factory trawler. that means बहुत बड़ा ट्रॉलर है, इसमें फैक्ट्री है. फैक्ट्री मतलब समझ रहे हैं, जो भी प्रोसेसिंग प्लांट हो है उसमें हम प्रोसेस कर सकते हैं, ड्रेस कर सकते हैं, काट सकते हैं, और हम कुछ प्रोडक्ट भी बना सकते हैं. सो वी आर हैविंग, सॉरी, फैक्ट्री ट्रॉलर में क्या है, प्रोसेसिंग प्लांट होते हैं, इंक्लूडिंग मशीन, मैकेनिकल गटिंग, फिल्टरिंग इक्विपमेंट with freezing installation, fish oil, fish meal and sometimes canning plant. बड़ा बड़ा अगर कोई फैक्ट्री है, मींस प्रोसेसिंग प्लांट अगर है, तो वो डिपेंड्स अपॉन द क्या क्राइटेरिया, हमारा क्या नीड है. जनरली बिगर फैक्ट्री ट्रोलर से बड़ा बड़ा होता है. देन आउटरिगर ट्रोलर, दिस मेक यूज ऑफ आउटरिगर बूम टू टो द गियर. जो हमारा साइड ट्रोलर है, साइड ट्रोलर में भी हम एक आउटरिगर ट्रोलर होता है, जिसमें हमारा टू सिम ट्रोल, नॉट टू सिम, दैट दो चार करके हम लोग ट्रॉल फिशिंग गियर को हम ऑपरेट करते हैं. सो दैट इज द आउटरिगर. विद द हेल्प ऑफ आउटरिगर बूम्स एंड डेरिक्स अरेंजमेंट विल बी देयर टू टो द ट्रॉल नेट. You can see here we are having this bottom trawler with gear. ये हमारा नेट हो गया, ठीक है. और इस नेट के दोनों साइड में हमारा विंग है, विंग से ब्रिडल है, ब्रिडल के साथ में ये जो रेक्टेंगुलर शेप हम देख रहे हैं, दिस इज कॉल्ड एज ऑटर बोर्ड, एंड दिस ऑटर बोर्ड हैविंग ए वार्प, एंड दिस इज कनेक्टेड विद द विंच. सो हियर वी आर हैविंग ए गैलो, एंड देन हियर विल बी विंच. So ultimately, whatever the ropes we are releasing during the time of operation, so that warp we have to round. हम विंच पे उसको लपेट लेंगे तो नेट हमारा नजदीक आ जाएगा. Then we have to use this गैलो, ये जो है नेट को उठाने के लिए और गिराने के लिए यूज करते हैं. So this is the anchor. So this is the model fishing craft. ये जो आउट रिगर बोल रहे थे, यू कैन सी हियर, ये एक साइड से भी यूज कर रहा है, इधर से भी यूज कर रहा है, तो दो ट्रॉल फिशिंग गेट एट द सेम टाइम्स दे आर ऑपरेटिंग. सो दिस इज द आउट रिगर ट्रॉलर, आउट रिगर ट्रॉलर. ठीक है.
नाउ वी आर हैविंग ए सीन्स, जो हम पढ़े होंगे अपना जो सीन्स, जनरली दिस सीन्स बेसिकली यूज्ड सराउंडिंग एयर एज वेल एज द सीन नेट. अगर इस वेसल को हमको यूज करना है तो दिस वेसल वी कैन यूज फॉर सराउंडिंग एयर. सराउंडिंग एयर दैट मीन्स योर जो गियर है जो कि सराउंड कर लेता है, बेसिकली पर्सिन इज देयर. देन सीन नेट is also there. So this sheens is used for surrounding air as well as the scene net. Then Persianer is there. Persianer जो है हमारा डिफरेंट काइंड्स के हैं, ये कैटेगरी है. फर्स्ट इज द नॉर्थ अमेरिकन टाइप. नॉर्थ अमेरिकन टाइप में क्या होता है, ब्रिज एंड एकोमोडेशन इज लोकेटेड फॉरवर्ड. ब्रिज क्या है, ब्रिज होता है जो मास्टर है, जो कैप्टन है हमारा, जो शिप को ऑपरेट कर रहा है, चला रहा है, तो उसके सामने में इंजन है. इंजन के सामने में फिर वो क्या बोलते हैं उसका रूम बना हुआ है, रूम बना हुआ है और सामने में शीशा लगा हुआ है, तो उसको पूरा दिखता है. सो दैट पोर्शन इज कॉल्ड एज ब्रिज. देन एकोमोडेशन जो क्रू मेंबर के लिए एकोमोडेशन होगा, दैट विल बी फॉरवर्ड पार्ट ऑफ द शिप. सो दैट इज द नॉर्थ अमेरिकन टाइप. ठीक है. देन यूरोपियन टाइप में क्या होता है, ब्रिज एंड एकोमोडेशन इज लोकेटेड एफ्ट पार्ट ऑफ द शिप, एफ्टवर्ड पार्ट ऑफ द शिप. ठीक है, मतलब पीछे की तरफ रहेगा वो. देन दूसरा है टून अप पर्शिनर, अरेंजमेंट सिमिलर टू नॉर्थ अमेरिकन टाइप. दे आर नॉर्मली इक्विप्ड विथ ए स्किफ. दिस इज इंपॉर्टेंट. SKIFF. Skiff basically it is a small boat which operated along with the Persianer. Persianer बड़ा बोट हुआ, लेकिन अगर हमको नेट को ऑपरेट करना है, पहले नेट को हम क्या करेंगे, सेट करेंगे. तो नेट का एक एंड को पकड़ेंगे और ये छोटा वाला जो बोट होगा, स्किफ, जनरली कॉल्ड एज स्किफ, वो क्या होगा, मोटराइज्ड रहता है. दे विल टेक ए वन एंड ऑफ द this Persian net and it will encircle the fishes which is in the water, basically the soul forming fishes. जो फिशेज सोल फॉर्म करती है, जो ग्रुप में मूव करती है, स्कूल में मूव करती है, तो उसको हमको क्या करना है, इंसर्कल करना है. तो we will take a help of this skiff, small boat, and after encircling that soul, we will release the one into the Persianer main boat. अब मेन बोट क्या करेगा, जस्ट नीचे से एक लाइन लेगा, पर्स लाइन, और उसको चक से क्लोज कर देगा. जैसे ही क्लोज कर दिया तो मछलियां हमारा साइड से भी क्लोज हो गया, बॉटम से भी क्लोज हो गया, बचा क्या, टॉप हमारा ओपन रहता है. नाउ धीरे धीरे हमको क्या करना है, हॉल करना है नेट को. सो बेसिकली दिस पर्शिनर इज यूज्ड फॉर दैट. Then scene netter is there. These vessel operate scenes which are surrounding nets attached to very long ropes. Scene nets. कौन सा है scene net? Boat scene है, beach scene है. Scene net में रामपानी भी है. तो scene netter is also there that we are using. This 4 classification you have to remember, most commonly come in competitive exam. Don't forget. So this is the Persian with gear. We are having this Persian net. This is a model. ठीक है, you can see here पूरा एकदम गोला जैसा है, नीचे में ओपन है, नीचे में रिंग लगा रहेगा. उस रिंग को हम क्या करेंगे, खींचेंगे तो नीचे वाला पार्ट भी बंद हो जाएगा, साइड से तो ऑलरेडी घिरा हुआ है. तो जब वेसल पर्सिन को यूज करता है, ऑपरेट करता है, दैट वेसल इज कॉल्ड एज पर्सिनर. ठीक है. नाउ वी आर हैविंग ए ड्रेजर्स. ड्रेजर क्या होता है, जो बॉटम ड्वेलिंग फिशेज होती है. बॉटम ड्वेलिंग फिशेज, से फॉर एग्जांपल mollusk is there, oyster is there, lobster is there. So they are bottom dwelling organism. So they may also reside into the sand, जो बॉटम में जो सैंड है. So this dresser is used to dress the bottom, sea bottom. और क्या होगा उसमें, क्या होगा, जैसे ही हम समुद्र से नीचे बॉटम से सैंड को उठाएंगे, along with this organism, mollusk will be, oyster will be there. So वो क्या होंगे, along with sand it will come. So while it is coming to the water, that times
sand will be out. Only this mollusk, then oyster और other कुछ जो है हमारा bottom dwelling organism वो हमारा ड्रेजर में आ जाएगा. देन दूसरा है लिफ्ट नेटर. लिफ्ट नेटर जो है ये वेसल जो है क्या करता है, इट ऑपरेट्स ए लार्ज लिफ्ट नेट. लिफ्ट नेट है, व्हाट इज दैट? लिफ्ट नेट. लिफ्ट नेट पढ़ा है यार, भूल जाते हैं ये लोग. लिफ्ट नेट चाइनीज डिप नेट है, लिफ्ट नेट है, नहीं देखा है? केरला में बहुत ऑपरेट होता है. तो उसमें वो अरेंजमेंट रहता है आउटरिगर. आउटरिगर उसको क्या करते हैं, लोअर कर देते हैं, पानी में डूबा रहता है और कुछ देर के बाद में हम 1-2 घंटा के बाद छोड़ देते हैं, फिर उठाते हैं. सो दैट इज द लिफ्ट नेटर. Then gill netter, that means the vessel which operates gill net. Either will be set gill net or drift gill net. ठीक है. Then we are having a trap setter. Trap setter, that means the vessel used traps and pots. But besides using these traps and pots, they are also used for operating pond net, pike net, stone net, and various kinds of other barriers. So that is the trap setter. What is this? This is your gill net. You can see here gill net. टॉप में हमारा फ्लोट्स है, नीचे में हमारा सिंकर है, साइड में हमारा ब्रिडल है. So single wall webbing. Then pot vessel, these set the pots for catching lobster, crab, crayfish and other similar species. Pot generally used for catching lobster, crab, crayfish, etc. Liners, these vessels use lines and hook. Lines और hook हमने देखा है, with or without bait और lures. लाइन में हम क्या करते हैं, हुक्स पे हम बेट्स डालते हैं और लूर डालते हैं टू अट्रैक्ट द फिश और टू कैच द फिश. सो वी आर हैविंग ए हैंड लाइनर. हैंड लाइनर में क्या होता है, ये वेसल क्या करता है, जनरली दिस इज यूज्ड फॉर ऑपरेटिंग हैंड लाइंस फ्रॉम स्मॉल बोट विदाउट एनी स्पेशल फीचर ऑफ गियर हैंडलिंग. यहाँ पे ज्यादा नहीं चाहिए, जस्ट क्या चाहिए, पोल चाहिए. पोल में हम बेट डालेंगे, पानी में डालेंगे और उसको जब मछली हमारा बेट को ले लेगा तो फिर हम उसको खींच के डेक पे डालेंगे. डेक पे वो ऐसा स्लोप बनाया रहता है कि वो कन्वेयर बेल्ट लगा रहता है, वो डायरेक्टली फिश रूम में चला जाता है. Then long liner is there. This vessel generally used for operating long lines. Long lines, we are having a one line, main line will be there. On the main lines, there will be several branch lines. So this long liner is used for operating long lines. Tuna long line is most popular. Okay, so here we are having a brine freezing tanks for preservation of tuna and are normally provided with this vessel. इसमें भी क्या है, hooks पे हम डाल देते हैं and then continuously we are taking the fish. You can see this is the long liners. We are having a vessel, one vessel. This is the main line. Over the main line, we are having a several branch line. We are having a branch line, having one end having a hooks. On that hooks, we are providing the baits. ठीक है, ये बहुत लंबा होता है, 100 किलोमीटर, 150 किलोमीटर, 200 किलोमीटर लंबा ऐसा लाइन बिछा रहता है. ठीक है. Now we are having a pole and line vessel. These vessels are provided with a special platform on the sides on which fisherman stands. इसका मैं एक स्पेशल वीडियो दिखाऊंगा so that you will be very impressed. So इसमें भी ये Japanese type pole line vessel. इसमें क्या, in this platform on the forward part of the vessel and the bridge is aftward. So platform है forward में, but bridge जो है पीछे में है. American type pole line fish में इसमें क्या है, platforms are located at the aftward, मतलब पीछे की तरफ. Then we are having a troller. ट्रोलर में क्या है, वी आर हैविंग दैट ट्रोलर, हम बताए होंगे ट्रोलर. इट इज नॉट ए ट्रॉलर, दिस इज द ट्रोलर. दैट मींस वेसल व्हिच यूज द ट्रोल लाइन एंड दैट लाइन इज फिटेड विथ ए लूर्स और आर्टिफिशियल बेट. ठीक है. देन वी आर हैविंग दिस आउटरिगर बूम.
by using the outrigger booms, we have to keep the trawl lines into the water, and then we have to run the vessel, so you will get the fishes. Now vessel using pumps for fishing. तो बहुत सारा वेसल ऐसा है जो पंप्स यूज करते हैं, जैसे हमारा पंपिंग सेट है, अंडरग्राउंड वाटर लेता है और बाहर हमारा फसल को डालता है, लाइक दैट वी आर हैविंग अ पंप्स। जनरली हम इसमें भी यूज करते हैं, जिसको ब्रेलर बोलते हैं। इसमें हमारा पर्शियन में जब हमारा टन्स एंड टन्स, जब हमारा बंट एरिया में हमारा फिश एक्यूमुलेट हो जाता है, तो टन्स एंड टन्स इतना भारी कौन उठा के डेक पे लाएगा। तो लाइक उसी को मतलब मैन पावर के लेबर को कम करने के लिए वी आर यूजिंग पंप्स। तो वो क्या करेंगे, जैसे हमारा पानी में डाल दिया तो वो मछली हमारा सक करेगा और हमारे डेक पे धड़ाधड़ फेंकते चला जाएगा। देन वी आर हैविंग ए मल्टीपर्पज वेसल। मल्टीपर्पज वेसल जो है, एक ही वेसल रहेगा लेकिन 2-3 पर्पस के लिए हम उसको यूज करेंगे, ज्यादा नहीं, थोड़ा मोड़ा मॉडिफिकेशन करेंगे, तो दैट इज कॉल्ड एज मल्टीपर्पज वेसल। देन ये तो हमारा था फिशिंग वेसल। फिशिंग वेसल के अलावा जो क्लासिफिकेशन है, दैट वेसल इज कॉल्ड एज नॉन फिशिंग वेसल। दैट मींस वेसल which is not directly connected or directly used for catching fish. तो फिर नॉन फिशिंग वेसल करता क्या है भाई, तो ये हमें हेल्प करता है, मदद करता है फिशिंग वेसल को। सबसे पहला है मदरशिप। मदरशिप क्या है, मदरशिप के पास में सारा चीज है, जितना सारा बोट है, अगर वो समुद्र में गया है, उसको कोई प्रॉब्लम हो जाएगी तो मदरशिप विल प्रोवाइड। What they will provide? They will provide the fuel. अगर किसी का फ्यूल खत्म हो गया, पानी खत्म हो गया, खाना खत्म हो गया, दवा खत्म हो गया, कोई बीमार है तो, या नहीं तो क्या करेगा, दूसरा क्या काम करता है, छोटा छोटा जो बोट है उस बोट से वो क्या करते हैं, कैच को ट्रांसफर करता है। छोटा बोट से लेके अपने मदर बोट में लेके चला जाएगा, फिर दूसरे बोट के पास जाएगा, वहां से भी वो कैच ले लेगा। करते करते वो क्या करेगा, उसको प्रोसेस करेगा, प्रिजर्व करेगा। सो दीज आर द फंक्शन ऑफ मदरशिप। मदरशिप बहुत बड़ा शिप होता है, नाम से ही मदर, दैट मीन्स मदर मतलब माँ, वो केयर करता है किसको, अपने बच्चे को। सो मदरशिप का काम ही है वो, जो भी वेसल है जो समुद्र में गया है मछली मारने के लिए, उसको वो मदद करेगा, चाहे वो खाना खिलाएगा, खाना देगा, पानी देगा, फ्यूल देगा, मेडिकल देगा, उसका कैच को भी ट्रांसफर करेगा, बर्फ खत्म हो गया है तो बर्फ देगा। These are the function of mothership. Okay. And besides all these functions, they are also used to transport and land the fish products into the port or landing center. They are also carry on board small fishing vessel which are launched on the arrival of fishing ground. The catch is transferred to the mothership processing and preserving. Already बता दिया हमने। Then salted fish motherships. Salted fish क्या होता है, ये हम जनरली salt fish prepare करते हैं। तो कुछ जो मदरशिप होते हैं स्पेशली डेडिकेटेड टू सॉल्टेड फिश, दैट मीन्स वेट फिश आर सॉल्टेड, उसको क्या करते हैं, सॉल्ट करते हैं। मतलब मछली के ऊपर में हम क्या करते हैं, सॉल्ट डाल देते हैं। सॉल्ट डालेंगे तो इट विल प्रिजर्व। सॉल्ट डालते हैं तो क्या होता है, इफ वी आर एडिंग ए सॉल्ट ओवर द फिश, व्हाट विल हैपन, बोलो यार। हेलो, नो वन इज टेलिंग, सब चुपचाप सुन रहे हैं। अरे एक्टिव भी हो या सो गए, कोई नहीं बोल रहा है। माइक्रोबियल ग्रोथ कम होगा। माइक्रोबियल ग्रोथ कम होगा, ओके एग्री। और कोई नहीं, हाँ बोलो शुभम। प्रिजर्वेशन सर। हाँ बोलो ना। प्रिजर्वेशन ठीक है प्रिजर्वेशन, बट होगा क्या अगर हम नमक डालेंगे मछली के ऊपर में, तो होगा क्या सर, पानी निकल जाएगा सर।
पानी निकल जाएगा, सही बोला है, पानी निकल जाएगा। तो फिर होगा क्या, पानी निकलेगा तो क्या फिर अंदर जाएगा? पानी निकलेगा पानी तो कुछ सर वो निकलेगा तो कुछ वेट का अंदर भी होगा, तो जाना चाहिए ऑक्सीजन सर। जाएगा। बैक्टीरिया तो सर प्लाज्मोलाइसिस हो जाता है। ठीक है, एक्सेप्टेबल। शुभम बोल रहा है पानी निकल जाएगा, तो फिर अंदर क्या जाएगा? अच्छा, ये हमारा टाइम अभी मतलब खत्म हो रहा है। अगर कट हो गई तो फिर से रिज्वाइन करेंगे एंड वी विल डिस्कस। बोलो, please, you can do the experiment, and you are doing the experiment at your hostel, at your home. We are having this cucumber, ठीक है? cucumber के ऊपर में if we are putting salt over the cucumber, what is happening? Water will release. At the same time, if you are eating that salted cucumber, you will feel salty taste. That means some of the salt has been penetrated into your cucumber. So like that, if you are using a salt and applying over the fish, so water from the fish body will released. At the same time, salt will penetrate into the fish tissue. So if the salt is penetrated, that means your product is cured. Okay? So this is the salted fish motherships generally used for that. Then factory motherships, यहाँ पे क्या होगा, बड़ा बड़ा फैक्ट्री लगा रहेगा, ठीक है, प्रोसेसिंग प्लांट लगा रहेगा फैक्ट्री शिप में। Mothership with catching vessel aboard. That means these carry a small tuna long lines on board. The catcher vessels are carried on upper deck and they are lowered and raised by means of booms and derrick arrangement. Booms and derrick arrangement. So this is the mothership with catching vessel aboard. Then mothership for two boat Pershing. So these खत्म हो गए? नहीं, someone is writing. This vessel carry two Pershing at the aft part of the vessel, and the Pershiner set and haul the gear. ठीक है, Pershiner set करते हैं और उसके बाद गियर को या नेट को वो हॉल करते हैं. Then mothership comes along the side and the fish is brailed or pumped. अभी हमने बताया pumping और brailing. जब हमारा पर्शियन में कैच एक्यूमुलेट हो जाता है बंट रीजन में, तो क्या करना है, हमको पंप करना है. पंप करना है तो हम क्या करेंगे, पंप का एक एंड जो है, हम जो कैच वाला पोर्शन है, बंट वाला पोर्शन है, उसमें सबमर्ज करेंगे एंड देन पंप को चालू करेंगे, तो वो जितना भी कैच एक्यूमुलेटेड कैच है वो हमारा डेक पे भर करके पूरा आ जाएगा. देन फिश कैरियर, this vessel is used for transporting fish in refrigerated hold.